श्री वाहे गुरु साहिब जी। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल पै चिता। जिना सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत। तन से नानका पूरन सोई संत। गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। अमृत संत चुगै नहीं दूरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कल्लर केरी छपड़ी, आए उलथे हंज। चिंजू बोड़न ना पीवह, उडन संदी डंज। हंस उडर क्रोध पया, हंस उडर कोधर पया। लोक बिडारण जाए, गहला लोक ना जानदा। हंस ना कोधरा खाए, गहला लोक ना जानदा। हंस ना कोधरा खाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रूहानियत दे मुजस्मे शबद ब्रह्म सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच बाबा फरीद साहब जी के पावन सलोकां की विचार इस स्थान ते चल रही है। भागां वाले जीव बाबा फरीद साहब जी की पावन विचार नूं सरवण करके अपने मनुखा जीवन नूं सफला करन दा यतन करते हैं। सो बाबा फरीद जी ने
ਪਾਵਨ ਲੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਜੇ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕਣਾ ਟਿਕਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਾਉ ਮਰਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ ਵਿਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛਤਾਓ ਵੱਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਓ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਚਾਉ ਸੀ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੋਗ ਉਤ ਭੁਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਆਂ ਦੁਖ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਖਣਾ ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆਤਮਿਕ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹਾਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਤ ਆਹਾਰ ਜਗ ਉਦਰੈ ਬਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ਕੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ। ਆਓ ਕਿ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ, ਜਿਸ ਆਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛਤਾਓ ਵੱਤ ਕੁਵਾਰੀ ਨਾ ਥੀਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ
कि मुड़ के उस तरह की तांग पैली वाली धार्मिक जीवन की नहीं रहिंदी जदों मनुख भेग का धारनी हो जाता। इस करके भेग तो अगे वधना है और जीवन दे विच उस सच्चे सुच्चे जीवन नूं जीवना है। वो तांग पैदा करनी है, तो जदों किसी के अंदर वो तांग पैदा हो जाती है, वो संतपुना जीवन विच आ जाता है, वो ब्रह्म ज्ञान किसी नूं हासिल हो जाता है। उस रस्ते ते जदों कोई मनुख तुरदा है तो ऐसे तुरे हुए मनुख नूं कई बारी संसारी लोग अपने वर्गा समझ लेंदे हन। उसदे विचार अज दे सलोकां विच बाबा फरीद जी समझा रहे हैं। एक बार इन्हां विचारां नूं समझण तो पहलां प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा फरीद जी आखन लगे कल्लर केरी छपड़ी आए उलथे हंज। आखन लगे कल्लर दी छपड़ी विच हंस आ उतरदे हन। हंस इत्थे गुरमुखां दी गल आखी जा रही है। उन्हां मनुखां दी गल कीती जा रही जिन्हां ने धर्म नूं माणिया है, जिन्हां दे जीवन विच सत है, जिन्हां दे जीवन विच वो प्रभु की याद वसी है। जे प्रभु दे प्यारे जिहड़े बन गए हन ते बाबा फरीद जी आखदे ने ऐसे जिहड़े गुरमुख जन हन, रब्बी प्यारे हन, हंस बिरती दे जिहड़े मालक हन। कई बारी वो मनुख भी कल्लड़ दी छपड़ी विच जिवें हंस आके उतर जान, हंस आके इकट्ठे हो जान ते लोग आखदे ने देखो हंस जिहड़ा है वो कल्लड़ दी छपड़ी ते बैठा होया है। कल्लड़ दी छपड़ी का अर्थ है जिहदे विच गंदा पानी है, मैला पानी है। ते लोग देखण वाले कहंदे ने कि ये जिहड़ा हंस है ये कल्लड़ दी छपड़ी ते आके बैठा है। ते नाल की करदा है, कई बारी उन्हां नूं ऐसा नज़र आंदा है चिंजू बोड़न ना पीवैं, कि वो चुंज उस पानी दे विच डोबदा है। जिमें चुंज पांदा है ते लोग कहंदे ने ये तां चुंज भी इस पानी विच पा रहा गंदे विच, पर वो पानी पींदा नहीं है। इस तरह ही जिहड़े रब दे प्यारे ने, हंस बिरती दे मालक ने, वो कई बारी समाज विच, संसार दे विच, परिवार दे विच रहिंदे ने, और वो परिवार दे विच, संसार दे विच विकारां दी गंदगी रूपी ये गंदे पानी नूं चुंझ च नहीं पाउंदे। वो अपने आप नूं बचा के रखते हैं। की होया जे कि एक हंस बिरती या हंस कल्लड़ दी छपड़ी ते बह गया, पानी विच चुंझ भी पा लई है पर उत्थे पानी पींदा नहीं है, क्योंकि गंदा पानी पीना ये हंस का सुभाव नहीं है। इस तरह ही सतपुरखां की गल बाबा फरीद जी कर रहे हैं कि वो रब्बी प्यारे परमेश्वर नाल जुड़े हुए, कई बारी वो भी संसार दे विच रहिंदे ने, कई बारी ऐसे मनुखां कोल बहिंदे ने जिहड़े मनुखां दी संगत बड़ी माड़ी है। कई बारी सतपुरख गलत लोकां दे विच भी पै जांदे हन। लोग आखदे ने ले ਇਹ मनुख भी तो गलत लोगों कोल बैठा सी ते ये भी गलत होवेगा। भावें वो सतपुरख रहिंदे गलत लोगों विच ने, पर उन्हां दे जीवन विच गलत लोगों का प्रभाव नहीं है। ये गल चार समझनी पैनी है जो बाबा फरीद जी समझाना चाहते हैं। इन्हों कबीर साहब जी ने इस तरह आख्या, कबीर संत ना छाड़ै संतई कोटिक मिलै असंत। जिहड़ा संत है, जिहड़ा भगत है, भावें उसनूं करोड़ां असंत क्यों ना मिल जान, पर वो अपनी भगती नहीं छड्डदा। सच जानना एक बड़ी सोहनी गल।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਦੁਆਰੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ। ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਤਨੇ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਸਵਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕਿਹਾ। ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੂੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਔਰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਲਈਏ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਥੇ ਕਿ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮਾਂ ਬਣਨਾ। ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਲਾਈ। ਇਹਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਬਰਸਾਤ ਰੁਕੀ, ਇਸ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਐਸੀ ਬਰਸਾਤ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਾਮ। ਐਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਐਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਗੀਤ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੀਤ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੀਤ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।
संसारी गीत नहीं रहे। और सच जानना जिथे कि परमात्मा की उस्तत होवे, जिथे कि रब दे गीत गाए जान, वो मंदिर हुंदा है। ते अज ये गीत गा के देवी बन गई है, ते वो इसका कोठा हरि मंदिर बन गया। महापुरख किते माड़े लोकां विच जाके भी बैठ जाण, भावें संसार आखेगा कि माड़े लोकां च बैठा होया है, पर उन्होंने भी देवते बना के आ जाते हैं। इस बेसवा नूं भी देवी बना दिता है, देवी बना दिता। और माड़े लोग विसाखी माप धार्मिक मंदिर विच भी बैठन तो उन्होंने भी दाग ला देंदे ने, उन्होंने भी दागी कर देंदे ने। और महापुरख लोग माड़े लोगों कोल बैठन तो उन्होंने भी जीवन बदल जाता है। पर किते माड़े लोग, विकारी लोग, बुराइयां नाल भरे हुए लोग जे किसी देवी दे कोल भी बैठन, उसनों भी बेसवा बना के जाएंगे। पर महापुरख जिहड़े ने, रब दे प्यारे जिहड़े ने, वो जिथे बह जाते हैं उत्थे वो परमात्मा दे नाम का अलख जगा देंदे हैं। क्योंकि महापुरख का एक सुभाव है, वो गलत थां ते भी बैठ गया, गलत लोगों की संगत विच भी बैठ गया, उत्थे भी लोगों को वो बदल सकता है। अक्सर विकारी बंदे चंगे बंदों को भी बदल के अपने वर्गा कर लेंदे ने। पर चंगे बंदे जिहड़े हुंदे ने, माड़े तो माड़ा बंदा होवे उसकी संगत करके भी वो कभी विकारी नहीं हुंदे। जिवें कबीर साहब ने कहा कि कबीर संत ना छाड़ै संतई कोटिक मिलै असंत। जिहड़ा भगत है, जिहड़ा संत है, उसनूं करोड़ां असंत क्यों ना मिल जाण, पर वो अपनी बंदगी नहीं छड्डदा। बाबा फरीद जी उस गल नूं समझा रहे ने, कहंदे कल्लड़ दी छपड़ी ते हंस आके उतर गए ने। कल्लड़ केरी छपड़ी आए उलथे हंज। उलथे का अर्थ है उतर गए ने आके, हंज का अर्थ है हंस। चिंजू बोड़न ना पीवै, वो हंस छपड़ी विच अपनी चुंझता डोबदा है, पर वो मैला पानी नहीं पींदा। इस तरह संत मैले लोगों विच बैठते ने, पर वो मैले काम नहीं करते, वो विकार नहीं भोगते, वो बुराइयां दे आदि नहीं हुंदे। ते उडन संधी डंज, उन्होंने उत्थों उड़न की तांग लगी रहिंदी, कदों इस विकारी संगत तो आपां दूजे पासे चलीए। पर उन्होंने उद्धार वास्ते कई बारी जाते हैं। और तुसीं देखो गुरु नानक पिता महाराज नूं कदी सज्जन ठग दे कोल ने, कदी गुरु साहब कलयुगी पांडे दे कोल ने, कदी कलकत्ते दे विच जादूगरनियां दे कोल ने, पर सबना दा जीवन जिहड़ा सी उस सतगुर ने बदलिया। इत्थे तक इतिहास देखो कि जदों गुरु नानक पातशाह सिंगलादीप जाते हैं तो राजे शिव नाम ने अपनी सुंदर सुंदर इस्त्रियां नूं गुरु नानक पातशाह जी की परख लैण वास्ते भेजिया सी। बाग दे विच गुरु साहब जी का अवतारा किया गुरु नानक पातशाह जी का, और उत्थे मनमोहनियां इस्त्रियां अगे आ गईयां और वख वख अपना रूप हुसन वखेरन। पर मेरे गुरु नानक ने एक गल आखी सी, गाछो पुत्री राजकुमार, हे मेरिया बच्चियो इथों चले जाओ। यह है हंस बिरती। वो माड़ियां कोल जांदे ने, पर उत्थे जाके भी वो शुभ गुणा की सुगंधी खिलार देंदे ने। क्यों? क्योंकि उन्हों का उत्थे आहर नहीं है, उत्थे उन्हों की दाल नहीं गलती सतपुरखां दी। हंस जिहड़ा है वो सरोवर ते बहिंदा है, पर वो हंस कदी जे कल्लड़ की छपड़ी ते भी बैठ गया, पर उत्थे कई बार चुंझता अपनी उस पानी में डोब लेगा, पर उत्थों गंदा पानी नहीं पींदा। सगों उसनूं हुंदा है कि सरोवर तो उडारी मार, अपने मान सरोवर ते जाइए। क्योंकि हंस जिहड़ा है ना, वो हमेशा ही आहार जिहड़ा है वो हीरे दा करदा है। हंसा हीरा मोती चुगना, इस करके वो उस सरोवर ते उडारी मार के वो मान सरोवर ते जाके बैठना चाहता है। इस करके बाबा फरीद जी इत्थे उन्हां पुरखां की गल कर रहे हैं जिहड़े सत ते मार्ग ते तुरे ने। और ये गल ख्याल करना जीवन के अंदर
ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਚਿਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੰਸ ਉਡਰ ਕੋਧ ਰਹਿ ਪਿਆ ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਉੜ ਕੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਕੋਧਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੰਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਝੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਸ ਨਾ ਕਰੋਧਾ ਖਾਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ, ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਧਰਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਸ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ 18-20 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵਿਹਲੜ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ,
अपने परिवार नूं पालदा होया सच दे मार्ग ते तुरदा है। ते जिहड़े ये कमली दुनिया है ना, इस नूं परवाह नहीं करदी। गुरु नानक पातशाह नूं भी कही दिता सी, कोई आखै पूतना को कह बेताला। लोग भूतना कहंदे सन, बेताला कहंदे सन, पर कमली दुनिया इस गल नूं जाणदी ही नहीं है भी जिहड़ी हंस की खुराक है वो ये विकार नहीं, ये बुराइयां नहीं, ये निंदा चुगली नहीं, ये कोदरा वो हंस नहीं खांदा। क्योंकि हंसा जिहड़ा चुगण का आदि है वो है हंसा हीरा मोती चुगना, बग डड्डा भालन जावे। हंसा की खुराक ही हीरा मोती है, ते बगला जिहड़ा वो डड्डियां पालदा फिरदा है। जिहड़ा कि संत बिरती का मालक है वो सच्चा सौदा करदा है। जिहड़ा संत बिरती का मालक है वो हट्टी ते बैठ के 13 तोलदा है। पर कमली दुनिया ने इस गल की सार नहीं है। ये कमला संसार जानता ही नहीं, बाबा फरीद जी कहते, क्योंकि जिहड़े हंस बिरती का मनुख है उसकी खुराक विकार नहीं, बुराइयां नहीं, औगुण नहीं, मेर तेर नहीं, हौमै हंकार नहीं। वो इस तरह का जीवन जींदा है। और ऐसा मनुख जिहड़ा कि इस अवस्था ते पहुँच गया है जिसके जीवन में ये हंस बिरती आ गई है, ख्याल करना वो परमात्मा दे बिल्कुल नेड़े हो जाता, जिसके अंदर परमात्मा की तड़फ है। ऐसे बंदे नूं फिर पता कौन लभदा है? परमात्मा लभदा है, परमेश्वर लभदा है। बिल्कुल ये तो इस तरह ही है जिवें कोई बच्चा मां नूं प्यार करदा होवे और किसी दिन मेले दे विच मां बच्चे नूं लैके गई है तो मां कोलों वो बच्चा गवाच गया है। बच्चा एको ही काम करता है, बस मां मां करता है, रोंदा है, विलकदा है। पर मां जिथे विलकदी है उत्थे बच्चे नूं लभदी भी है। संत केवल परमात्मा दे लई विलकदा है, परमात्मा दे याद खुंझ जाए तो रोंदा है। वो कहंदे एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। प्यार वालों सच जानना, जदों कोई हंस बिरती का मालक बन जाता है, भावें संसार निंदे पर परमात्मा उसका पिछा करता है। और कबीर साहब ने कहा कि कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। जे हंस बन जाइए, मन निर्मल हो जाए, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। पाछे लागे हर फिरै कहत कबीर कबीर। कहने रब भी पिछे पिछे लग्या फिरदा है। फिर ऐसी अवस्था बन जाती है जिमें कि माँ बच्चे नूं लभ रही। हुण माँ के बच्चा केवल रो रहा है पर माँ दो काम कर रही है, वो भी बच्चा बच्चा भी कर रही है, बेटा बेटा भी कर रही है, तो नाल लभ भी रही है। इस तरह कोई संत बन जाए, कोई गुरमुख बन जाए, कोई गुरसिख बन जाए, कोई रब का प्यारा बन जाए, रब की याद जिहदे जीवन में चलन लग पवे, भावें संसार कमली दुनिया उसनूं नहीं जानती पर निरंकार जिहड़ा है उसनूं लभदा है। गुरु ऐसे सिख नूं लभदा है जिसका ऐसा जीवन बन गया। सिख ऐसे गुरु नूं लभदे ने। तुसीं वेखो इतिहास दीयां घटनावां, ये गुरु अंगद देव जी पिता महाराज जदों खंडूर साहब जाते हैं तो वह भी एक पासे होकर बैठ जाते हैं ते लभदे ने। संगतां व्याकुल ने गुरु साहब जी के दर्शनां दी। गुरु अमरदास पिता महाराज नूं संगतां लभदियां ने। जिस दे अंदर आत्म ज्ञान प्रगट हो गया है, गुरु नानक की जोत प्रगट हो गई है, ख्याल करना उसनूं सिख संगत भी लभदी है। और जिस दे अंदर आत्म ज्ञान प्रगट हो गया उसनूं तां गुरु नानक पातशाह भी लभदे सन। पाई लैना मैं तैनूं लभदा सां। मैं सोचदा सी कि कोई ऐसा मिले मैनूं जिस दे अंदर गुरु नानक बैठ सके, गुरु नानक बैठ सके। सो जीवन विच इत्थे जो विचार है कि ख्याल करना कि कई बारी असी संत बिरती दे मनुख नूं लभण वास्ते यतन करते हैं भी कोई संत मिल जाए, कोई रब दा प्यारा मिल जाए तो उस नालों चंगा होवेगा गुरसिखो कि आप संत बनन वास्ते यतन करिए। ये चंगी गल होएगी।
भी कोई उद्यम करिए, जितना उद्यम संत नूं लभण वास्ते लगना, जितनी मेहनत संत नूं लभण वास्ते ते पहचान वास्ते लगनी है, जे आप ही भगती करके संत बन जाइए। जितना उद्यम संत नूं लभण ते परखण च लगदा है, उतनी ही जे बंदा अपने जीवन नूं इस पासे तोल लवे ते संत बन सकदा है, ब्रह्म ज्ञानी बन सकदा है, गुरसिख बन सकदा है, भगत बन सकदा है। इस करके बाबा फरीद जी इत्थे समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन के अंदर संत बनने वास्ते उद्यम करो, संसार की परवाह नहीं करनी। ये विकारां नूं छड्डो, जिहड़ा तुहाडी खुराक है आत्म नाम दी, उस खुराक दे व्यापारी बनो ते अपनी वृत्ति हंस वर्गी बनाओ। हंस उडर कोदर पिया लोक विडारन जाए, गहला लोक ना जानदा हंस ना क्रोधा खाए। कोदरा खाए, हंस कोदरा नहीं खांदा, बाजरा नहीं खांदा, उसकी खुराक नहीं है। गुरसिखा तेरी खुराक किवें विकार बन जाते हैं, बुराइयां बन जा। कई बार सिख नूं वेखो ना तो ये अमृत छक के भी निंदा चुगली कर रहा होंदा है, अमृत छक के भी ये लोगों की बुराइयां कर रहा होंदा है, अमृत छक के भी वो काम कर रहा होंदा है जिहड़े काम नहीं करने चाहिए। सिखा तेरी खुराक नहीं, तैनूं तो एक एक कदम गुरु नूं पुछ के रखना चाहिए। गुरु कृपा करे, सतगुर रहमत करन कि सानू ये सोझी आ जाए कि असी हंस वृत्ति दे मालक बनीए और संसार दे विकारां तो, बुराइयां तो, जो संसार दे विच बुराइयां ने, इन्हां तो बच के अपने जीवन नूं हंस बना लईए। ते हंस जिहड़ा है उसदा जीवन बड़ा पवित्र हुंदा है, बड़ा निर्मल हुंदा है। ते हंस वृत्ति जिस दिन साडे जीवन विच आ गई, उस दिन असी इन्हां विकारां तो बच जावांगे, बुराइयां तो बच जावांगे, क्योंकि कोई संत बना नहीं, उहदे जीवन विचों बुराइयां जिहड़ियां ने वो अपने आप छुट जाणगियां। कई लोग कहते हैं बुराइयां नहीं छड्डदियां, बुराइयां पिछे पिछे आ जांदियां ने। गुरु साहब कहते हैं तू संत बनता सही, तू ब्रह्म ज्ञानी बनता सही, तू गुरसिख बनता सही। जिस दिन तू ब्रह्म ज्ञानी बनेगा, सारियां बुराइयां तेरा पिछा छड़ जाणगियां, क्योंकि जिस दिन तेरे हृदय विच बुराइयां वास्ते था ही नहीं रही, विकारां वास्ते था ही नहीं रही, ये विकार तेरा की करनगे, ये बुराइयां तेरा की करनगियां। इस करके प्यार वालिओ, अपने जीवन नूं ऐसा बनाओ हंस वृत्ति दा, और अपने जीवन नूं संसार दे विच रहिंदे होए निर्लेप रखो। ऐसा जीवन बन जाए कि एक बारी विकारी बंदां दे कोल भी बैठिए, संसार भावें जो मर्जी आखे, पर आपां उत्थों भी निर्मल होके आइए, सुरखरू होके आइए। उन्हां विकारी लोगों को जीवन तो तब्दील कर दईए, पर किते ऐसा ना हो कि विकारियां दी संगत विच बैठ के आप विकारी ना बन जाइए। बहुते लोग करते इदां ही ने, और कहते भी यही ने कि पीनी नहीं सी, मित्र दे कोल गया सी, उसने पिला दी। मैं कई बार सोचता है, जिस गुरु नानक मित्र की संगत करके, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की संगत करके तू अमृत नहीं छक सकिया, एक आम संसारी मित्र की संगत करके तू नशा कर रहा, ये किवें हो सकता है? इसका अर्थ कि तेरे अंदर उस विष नूं छकन की चाहत सी, तेरे अंदर वो नशा वरतन की चाहत सी। ये चाहत साडे अपने मन की है, साडे दिल की, कोई किसी को नहीं पिला सकता, जबरन कोई किसी को नहीं पिलांदा। ये तो मन के अंदर एक तमन्ना होंदी है, बहाना लभदे फिरदे असीं बुराइयां वास्ते, अवगुण करन वास्ते। सो ऐसे बणीए कि माड़े लोगों के कोल बैठ के भी असीं सुरखरू आईए, विकारां मतलब काजल की कोठरी विच रह के भी असीं कालख तो बचे रहीए। इस तरह का जीवन बाबा फरीद जी इत्थे समझा रहे हैं। सो गुरु साहब कृपा करन कि असीं इस रस्ते ते चलीए और इस रस्ते ते अगे वधदे जाइए, दुचिते विच ना रहिए, और जीवन की मंजिली मकसूद ते जिस दिन असीं पहुँचांगे, सच दे नेड़े होवांगे, उस दिन हो जाणगे ये लोग सुखीए और लोग सवेले नानक हर को आपन। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। फतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू साहिब जी। अमरीक
शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला, नाम की करके हे गोले। वाहिगुरु साहिब जी। टोडी महला पंजवा, घर पंजवा, दुबदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन, पंच दोग और अहम रोग, यह तंते सकल दूर कीन। ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन, पंच दोग और अहम रोग, यह तंते सकल दूर कीन। राहो बंधन तोर छोर बिख्याते, गुर को शब्द मेरे हियर दीन। रूप अनुरूप मोरो कछ न विचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए, आनंद चिता हर को पतीन। तिस ही को ग्रह सोई प्रभु नानक, सो ठाकुर तिस ही को तीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए, आनंद चिता हर के पतीन। तिस ही को ग्रह सोई प्रभु नानक, सो ठाकुर तिस ही को तीन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी है, करते का होए विचारो। तित कर गावो सोहेला, सिवरियो सिरजनहारो। तुम गावो में निरभौ का सोहेला। हो वारी जे सोहेला सदा सुख होए रहा, उन तिंज अड़े संभालन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवत दाते कवन समार। सम्मसा लिखिया मिल कर पावो तेल, देव सज्जन असी सड़ियाँ, जो होवै साहिब सो मेल। कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदन हारा। सिमरिय नानक से दे आवन, रागा सा महला पहला। छे कहर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख बढ़ाई तोय रहाओ। इस विच असियां घड़ियां पैरां थती वारी, महा हुआ सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के केते वेश, राग तन्हासरी महला पहला। गगन में थाल रवचन दीपक बने, तारका मंडल जक मोती। तू बने आलो पवन चबरो, करे सगल बनराय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए बहुखड़ना तेरी आरती, अनता शब्द बाजंत पेरी रहाओ। सहस तब नैन नैन है तोय को, सहस मूरत नायक तो ही। सहस पद विमल अनेक पद, गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब में जो जोत है सोय हृदय चानन, सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भावै सुआरती होए। हर चरण कर मकरन लोहित, मनोदिनो मोहि आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाय वासा। राग गौड़ी पूरी महला चौथा। काम क्रोध नगर ओह भरया मिल, साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हल्ले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर दंडोत पुन वड्डाए रहाओ। साकत हर साध न जाने, तिनंतर हूँ मैं कंडा है। जो जो चला चुबे दुख पामै, जम काल सह सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पहु खंडा है। अविनाशी प्रग पाया परमेश्वर, बहुत सौभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन पव तेरे, हर राख राख बड़ बड्डा है। जन नानक नाम धार टेक, हैर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूरी महला पंजवा। करो बेनती सुनो मेरे मिता, सन टहल की वेला। इहाँ खाड़ चलो हर लाहा, आगे संसवेला। कटै दिन सरै नारे, मन गुर मिलका सवारे रहाओ। एह संसार विकार संसे में तरियो, ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए प्यावै। एह रस अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोए बिहाजो। हर गुर ते मनै बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे। बोर न होए गो फेरा,
अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगै मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।